وہ لکھنؤ کی تعمیرات میں آخری شاہی یادگار ثابت ہوا۔ یہ نئے لکھنؤ میں واقع ہے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں امام باڑہ سبطین آباد کا، جو لکھنؤ کے سب سے پوش سمجھے جانے والے علاقے حضرت گنج کے دامن میں ہے۔ واجد علی شاہ کے والد اور اودھ کے چوتھے بادشاہ امجد علی شاہ کی حکمرانی کا زمانہ 1842 عیسوی سے 1847 عیسوی تک کا ہے۔ امجد علی شاہ بے حد مذہبی شخص تھے۔ ان کے دور میں لکھنؤ کے 2 بازار وجود میں آئے، جو آج لکھنؤ میں تجارت و کاروبار کے بڑے اہم ٹھکانے اور مرکزی بازار ہیں۔ ایک ہے حضرت گنج، جسے خود امجد علی شاہ نے بسایا، تو دوسرا ہے امین آباد، جسے ان کے وزیر امین الدولہ نے آباد کرایا۔ امجد علی شاہ 48 سال کی عمر میں 13 فروری سن 1847 کو انتقال کر گئے اور اپنے آباد کیے گئے محلے حضرت گنج میں ہی مینڈو خان رسالدار کی چھاؤنی میں سپرد خاک ہوئے۔ واجد علی شاہ نے اس مدفن پر 10 لاکھ روپے صرف کر کے امام باڑہ تعمیر کرایا، جس کا نام انہوں نے سبطین آباد رکھا۔ گویا یہ امام باڑہ بھی ہے اور امجد علی شاہ کا مقبرہ بھی۔ سبط عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں نواسے کے۔ سبطین سے مراد ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ اس امام باڑے میں تزئین و آرائش کے بڑے سامان تھے، مگر سن 1857 کی جنگ آزادی میں اس کا تمام آرائشی سامان لٹ گیا اور اس امام باڑے کو شدید نقصان پہنچا۔ اس امام باڑے کا رخ دیگر امام باڑوں کی طرح جنوب کی جانب ہے۔ اس کا علاقہ 16 بیگھے سے زائد تھا۔ یہ وسعت میں امام باڑہ حسین آباد سے بھی بڑا ہے، لیکن اب اصل امام باڑے کے ارد گرد کی زمینوں پر کرایہ دار آباد ہیں۔ یہ عمارت محکمہ آثار قدیمہ کے تحت محفوظ ہے۔ اس امام باڑے میں داخلے کا عظیم الشان صدر دروازہ حضرت گنج کی مرکزی سڑک سے نظر آتا ہے۔ لکھوری اینٹیں اور چونے گارے سے تعمیر یہ پھاٹک کافی بھاری بھرکم دکھائی دیتا ہے۔ اس صدر دروازے سے اندر جانے پر دوسرا دروازہ ملتا ہے، جہاں سے سبطین آباد امام باڑے کی عمارت کر و فر کے ساتھ جلوہ فگر نظر آتی ہے۔ دونوں صدر دروازوں کے درمیان سے مقبرہ روڈ نکلی ہوئی ہے، جو بات کا اضافہ معلوم ہوتی ہے۔ لکھنؤ کے تاریخ نویسوں کے مطابق ان دونوں دروازوں کے درمیان صحن اور باغ تھا۔ دروازے سے جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک عظیم کشادہ میدان میں ہیں۔ عمارت کی غلام گردش نگاہوں سے اوجھل نظر آتی ہے۔ امام باڑہ سبطین آباد کو آصفی امام باڑے کی نقل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اونچے چبوترے پر بنا ہوا ہے، جس کے دونوں طرف زینے ہیں، جو گنتی میں 8 ہیں۔ زینے کے دونوں سلسلوں کے درمیان ایک حوض ہے۔ باہری دالان ایک وسیع چبوترا ہے۔ اندر امام باڑے میں داخل ہونے کے لیے 5 بڑے دروازے ہیں، جن کے اوپر منبت کاری کی گئی ہے۔ ان پر علم کے نشان بھی نقش ہیں، جو نہایت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ 5 دروازوں کے دائیں اور بائیں جانب 3 چھوٹے دروازے ہیں۔ اس عمارت کی چھت پر گنبد نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی برجیاں بنی ہوئی ہیں، جو نزاکت کا پیکر ہیں اور بے یار و مددگار چھوڑ دیے جانے کا شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی سربلند نزاکت زمان حال سے ان کے حسین ماضی کی داستان بیان کرتی ہیں۔
इमामबाड़े के अंदर शहनशीन के सामने 2 दालान हैं। हर एक में 5-5 दर हैं। दालानों के दोनों तरफ सहंचियां हैं, जिनमें ऊपर नीचे 3-3 दर हैं। तामीर में लखौरी ईंट और चूने का इस्तेमाल हुआ है। मिहराबों, दीवारों और छत पर मनबतकारी नुमाया है। फूलों और कलियों के नुकोश पुराने वक्तों के फनकारों की मेहनत और अर्करेजी के सबूत के तौर पर मौजूद हैं। छत काफी ऊंची है और इसमें आसफी इमामबाड़े की छत की तरह ही लकड़ी या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। शहनशीन के करीब जो दालान है उसमें 2 कब्रें नुमाया हैं और तीसरी कब्र बाएं तरफ सहंची में है। किसी कब्र पर कुछ कुरिंदा नहीं है, इसलिए ज़ियारत करने वाले को यह पता नहीं चलता कि अमजद अली शाह की कब्र कौन सी है। एक रवायत के मुताबिक इस इमामबाड़े में 17 कब्रें हैं, जिनमें से 15 का निशान मिट गया है। शहनशीन में ताजिए रखे हुए हैं। इमामबाड़े के अहाते में दाएं जानिब मस्जिद है, जो ऊंचाई पर वाक़ है। मस्जिद पर 3 गुंबद हैं, जो अवध के तर्ज तामीर यानी हिंदुस्तानी और मुगलिया तर्ज तामीर के मेल जोल का नमूना है। मस्जिद के दोनों मीनार मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का निशान जरूर बाकी है। इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद को सन 1857 की आजादी की लड़ाई के वक्त बदअमनी के दौर में बुरी तरह लूटा गया और सन 1858 से सन 1860 तक यहां अंग्रेज काबिज रहे। वाजिद अली शाह ने इस इमामबाड़े के अलावा छतर मंजिल और कैसर बाग की इमारतें तामीर कराईं। अपनी बेगम आलम आरा के नाम पर आलम बाग आबाद किया और दूसरी बेगम के नाम पर सिकंदर बाग की बुनियाद डाली। इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद अमजद अली शाह और वाजिद अली शाह के नामों से वाबस्ता है और दिलचस्प बात यह है कि जब वाजिद अली शाह ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए माजूल किए जाने के बाद कलकत्ता के मटिया बुर्ज पहुंचे तो वहां भी उन्होंने सिब्तैनाबाद के नाम से शानदार इमामबाड़ा तामीर कराया और लखनऊ की यादों को ताजा किया। लखनऊ में अमजद अली शाह की हुक्मरानी के आखिरी दौर तक ईस्ट इंडिया कंपनी फौजी और सियासी एतबार से अवध के मामलात पर इस तरह मुहित हो चुकी थी कि अब वो महज वो मौका और बहाना तलाश कर रही थी कि उस हुकूमत को किस तरह माजूल किया जाए। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब 7 फरवरी सन 1856 को अवध के रेजिडेंट जनरल आउटरम ने गवर्नर जनरल की तरफ से ये हुक्म सुनाया कि वाजिद अली शाह को माजूल करके अवध का इंतजाम कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया है। वाजिद अली शाह अपनी वालिदा नवाब ताज आरा बेगम मलका किश्वर, भाई मिर्जा सिकंदर हशमत जव्वाद, वली अहद प्रिंस मिर्जा हामिद अली और दीगर लोगों को लेकर कलकत्ता रवाना हुए। वहां से मलका किश्वर कंपनी के फैसले के खिलाफ मलका विक्टोरिया के सामने अपील करने की नीयत से इंग्लैंड रवाना हुई। 30 अगस्त सन 1856 को उनका काफिला लंदन पहुंचा। अब्दुल हलीम शरर ने गुज़िश्ता लखनऊ में लिखा है कि मलका किश्वर की मलका विक्टोरिया से मुलाकात भी हुई, लेकिन 1857 में लखनऊ में जंग आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। चुनांचे बात नहीं बनी। मलका किश्वर वहां से पेरिस चली गईं। इरादा था मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करने का, मगर मौत का परवाना आ पहुंचा। वो आलम गुर्बत में दुनिया से सिधार गईं और उनकी लाश पेरिस में सुपुर्द खाक कर दी गई।
जबकि मिर्जा सिकंदर हशमत जवाद लंदन में पैवस्त खाक हुए। शाही काफिले के जो दीगर अफराद थे वो बखैरियत हिंदुस्तान वापस लौट आए। दूसरी तरफ 31 साल तक तख्त व ताज से महरूमी की जिंदगी गुजारने के बाद वाजिद अली शाह ने 21 सितंबर सन 1887 को कलकत्ता में इंतकाल किया और मटिया बुर्ज के इमाम बाड़ा सिप्तैनाबाद में सुपुर्द खाक किए गए। कदीम लखनऊ की आखिरी बहार में मिर्जा जाफर हुसैन लिखते हैं कि हजरतगंज की पुरानी आलीशान इमारतें अमजद अली शाह की करम गुस्तरी का नतीजा थीं और सिप्तैनाबाद का ऐसा अजीमुल मर्तबत इलाका उन्हीं की बदौलत वजूद में आया था। यहां उनकी अबदी ख्वाबगाह है जिसका एहतराम करते हुए उनके बाद उनके जानशीन वाजिद अली शाह ने ये तमाम तामीरात बनवाई थीं, जिनके दाखिले का अजीमुशान सदर दरवाजा अब तक माल रोड के ऊपर अपनी अजमत की याद दिलाता है। देखते रहिए हमारा चैनल सुनील बत्ता फिल्म्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, क्योंकि बहुत कुछ अभी है जो आप तक पहुंचने वाला है।